Good morning, my dear student. Today we are going to read your class 11th history topic writing and city life. This is your second chapter. My dear student, as I informed you in your previous class, CBSE give you some privileges having seen the pandemic corona. आपके सिलेबस को थोड़ा छोटा किया गया. सिलेबस में फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम चैप्टर को काट दिया गया और इसकी जगह एक नया 2 चैप्टर काट के आपके सिलेबस को छोटा कर दिया गया और फिर सेकेंड चैप्टर से आपका चैप्टर इस बार सिलेबस स्टार्ट हुआ. सेकेंड चैप्टर में कई सारी महत्वपूर्ण बातें जैसे पहली सभ्यता, पहली सिविलाइजेशन, जहां पे हम प्रॉपर फॉर्म में शहरों का विकास देख रहे हैं, हम वहाँ पे राइटिंग स्किल्स देख रहे हैं, हम वहाँ पे नगर को बढ़ते हुए बनते हुए देख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशंस देख रहे हैं, वहाँ पे राइटिंग्स एंड टेबलेट्स देख रहे हैं, अर्ली लाइब्रेरी हमें वहाँ मिल रही है. साथ ही साथ हमें वहाँ पे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे उनके अपने कैलेंडर, जैसे उनका अपना शहर, जैसे उनके अपने मंदिर, उनके धार्मिक विश्वास, इन सारी चीज़ों को हमने देखा. हम इस चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ा. आज हम इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे फिर एक बार बात करेंगे. वी विल डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुडे वंस अगेन. माय डियर स्टूडेंट, इफ यू विल सी, if you have remember my previous class where I told you about that the introduction of this chapter, and when I am discussing the introduction of this chapter you have remember that कि किस तरीके से जो शुरू के नगर थे, शहर थे, उनका उत्खनन हुआ. मेसोपोटामिया के शहरों का जब उत्खनन शुरुआत में हुआ किस टाइम पे, तो कहता टाइम थी, आप अगर पढ़ें अपने बुक की पेज नंबर 29, तो कहता है कि आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840 एट 1 or 2 sites including Uruk and Mari, which we discussed below. Excavations continued for decades. No Indian site has ever seen such a long-term project. Not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, status, ornaments, graves, tools, and seals. As sources, there are thousands of written documents. Mesopotamia was important to European because it refers to the Old Testament. The first part of the Bible, for instance, the book of the Genesis of the Old Testament, refer to Simar, meaning Sumer, as a land of brick-built city. Travelers and scholars of European looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when the archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. And from the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible. By the 1960, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true, but may have been way of expressing the memories about important changing in history. Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. What is more, attention was directed to different questions, including the reconstructing the lives of ordinary people, establishing their literal truth of Bible narratives,
receded into the backgrounds. Much of what was discussed subsequently in the chapter is based on these later studies. My dear student, this is what I have already explained with you in my previous class. If you remember, where I told you that in Bible a story given the Simar. Simar, that city was made by what? Bricks. Which type of bricks? तो कहता है पके हुए ईंटों से, baked bricks. Simar, the city was the baked brick city. Simar was explained in Bible. So that's why when the Uruk and Mari during 1840 excavated first time the various type of bricks made buildings was found. The Europeans, especially those countries who follow the Christianity, they felt that this place is directly belongs to our ancestor. They accepted that city as their ancestral land. The Simar came to be known as their ancestral land. So, in the excavation of Mesopotamia, the archaeological remains which was collected by the archaeologists, which promote the Europeans and the Christians follower to excavate this land in a very vast way. There are two types of excavation. First excavation, that is horizontal excavation. Horizontal it means एक दूर तक के क्षेत्र. And second type of excavation, that is the vertical excavation. Vertical excavation is cheaper than the horizontal excavation. Horizontal excavation expenses a long time, but the vertical excavation at little bit times they can easily understand that culture of particular land. Here, when Europeans, when they felt that this land was their ancestral land, they give so many funds. They provide money for the excavation. इस जमीन को ढूंढने के लिए, इसका एक्सकवेशन करने के लिए उन्होंने बहुत ही फंडेड किया. दे ट्राई टू प्रूव कि जो स्टोरी बाइबल में दी गई है फ्लड की, वो किसी भी टेबलेट पे उन्हें मिल जाए. बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट फाइंड. बट वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कल्चर, द एक्सकवेशन इज स्टार्टेड अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा. इससे एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति के बारे में मालूम चली. और यहां से पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो था वो एक नए डेवलप फॉर्म में दिखाई देने लगता है. एक नई सभ्यता, एक नई कल्चर, एक नई सिविलाइजेशन के बारे में मालूम चलती है. 5000 to 35,000, 5000 to 3500 BC एक सिविलाइजेशन तो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदियों के बीच में डेवलप हुआ, बना, बढ़ा. इनके बारे में पता चलता है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. कहता है कि बाद में ब्रिटिश म्यूजियम ने भी इसे फंड किया. कुछ भी हो, उनके योगदान, उनके कंट्रीब्यूशंस को हमें नहीं भूलना चाहिए. और इसके आधार पर हमने मेसोपोटामियन सभ्यता को समझा. मेसोपोटामिया वाज अर्बन कल्चर आल्सो. सो in my previous class we have discussed that the geographical condition of the Mesopotamia and the introductions. No doubt this is our revision class. I will try to give you all the information in the very easy language, and it is very easily what you can understand. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. तो इन चीजों को समझने का प्रयास करिए. अभी हमने बात किया कि इन चीजों पे किस तरीके से मेसोपोटामिया का उत्खनन हुआ, कैसे मेसोपोटामिया का विकास हुआ. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो मेसोपोटामिया में अर्बनिज्म आया, नगरों का विकास कैसे हुआ, शहर कब बने. आई टोल्ड यू दैट कि इन मेसोपोटामिया वी हैव क्लियर एविडेंस that during 3000 BC the first urban city was
emerged in Mesopotamia. That era was called Bronze Era. During that time, bronze was not easily available in Mesopotamia. So that's why they imported that metal from the other countries. Similarly, in Mesopotamia, there were no the various things, various goods which produced and what modified in Mesopotamia. A very finest example in Mesopotamia that was the Varka head. If you will see, if you will read this paragraph Varka head, you can easily understand that marble was not available, easily available in that regions. Marble was imported from the other territories, and that is the very important things what I am telling. The earliest city in the Mesopotamia date back of the Bronze Age, 3000 BC. Bronze is an alloy of copper and tin. Using bronze meant the procuring these metals often from great distance. This was not easily available in Mesopotamia. This was using bronze meant processing, procuring these metal from often from the great distance. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stones, sails, cutting sails for islands, furnitures, etc. Mesopotamian weapons were also of bronze. For example, the tips of the spears that you see in the illustrations on page number 38. My dear student, what I am telling you, मैं आपको इस सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि आखिर ये चीजें वहां पे आई कैसे, और ये चीजें अगर वहां नहीं होती थी तो जिससे वहां के आर्टिसंस ने इन सारी कलाओं का विकास किया, इन नए नए चीजों को बनाया. In my previous class, I focused the two important activities of the Mesopotamia. First activity that is the farming, and second activity that was the pastoralism. Farming and pastoralism both very important activity in the Mesopotamian regions. No doubt to say that they play important role in the emergence of the city, but it has never been that only two things was the base of the industry. I mean to say that urbanization of Mesopotamia. ये दो कारण, सिर्फ गांव और जो पशुपालन था, सिर्फ ये दो कारण ही मेसोपोटामिया के नगरों के विकास में महत्वपूर्ण कारक नहीं थे. इनके साथ साथ नगरों के विकास के कारकों में और भी बहुत सारी चीजें थीं. हमने बात की किस तरीके से शहर बने. हमने कहा व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे शहर का विकास होता है, इफ यू विल माइंडली ऑब्जर्व about the development of the emergence of the city, development of the city, then you have to think the regions कि लोग कैसे एक जगह आए होंगे, डेंस पॉपुलेशन बसा होगा और नगर बने होंगे. There were the various regions. One by one we will discuss. Suppose first region that was suppose religious place. एक धार्मिक नगर रहा होगा. I think there is no need to write on board. Only I will lecture you. I am going to tell you orally that the land was very important, which is taking as a religious belief. So the various people settled themselves around that pilgrimage, around that shrines, around that cathedral towns. So city was developed. It is the process. Second things, नगरों के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल रीजन. कोई भी सत्ता का जो केंद्र होगा, जहाँ राजा रहता होगा, वहाँ पे राजा अपने अनुसार इन शहरों को डेवलप कराता होगा, शहरों का विकास होता होगा. ये शहर, ये सिटी
किस तरीके से डेवलप हुए होंगे, शहर कैसे बने होंगे, इन चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि शहर कैसे बने होंगे। जब राजा अपने आसपास जो प्रशासनिक केंद्र रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा, तो वहाँ पे लोगों के सारे काम होते होंगे। सपोज आज की दिन डेट में सबसे आसान भाषा में समझाएं हम आपको, तो आप देखिए, आपको कचहरी जाने के लिए आपको गांव से कचहरी आना पड़ेगा। कचहरी क्यों आना पड़ेगा? आपके सारे झगड़ों का निपटारा कचहरी में ही होगा, जमीन की रजिस्ट्री कचहरी में ही होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में कचहरी एक फेमस प्लेस हो गया, जहाँ पे लोग आए। अब जो दूर से आते होंगे या कचहरी से संबंधित वो सारे लोग जो कहीं दूर से आते होंगे, धीरे धीरे उन लोगों ने अपने को इस क्षेत्रों में स्टेब्लिश करना शुरू किया होगा। लोगों ने जमीन लिए होंगे, घर बनवाए होंगे, फिर साथ साथ उनके साथ नगरों का विकास शुरू हुआ होगा, आवश्यकताओं की चीज़ें, कुछ दुकानें खुली होंगी, और फिर इस तरीके से वो एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में डेवलप हुआ होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हो गया और उस शहर में कन्वर्ट हो गया। ठीक ऐसे धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन्स। धार्मिक कारणों पे मैंने आपसे बात की कि धार्मिक कारण कैसे हुआ होगा, तो मैंने कहा था कि जिस धीरे धीरे एक कोई भी श्राइन, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी कैथेड्रल टाउन, इस तरीके से हमने बात की कि धार्मिक नगरों का भी इसी तरीके से विकास हुआ होगा। धार्मिक नगरों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, कैथेड्रल टाउन्स, गुरुद्वारा तो बहुत बाद में बना। ये सारी चीजें मैं वर्तमान सिनेरियो में बोल रहा हूं। अगर एंशिएंट टाइम में हम बात करें, प्राचीन काल में बात करें, या सिटी के डेवलपमेंट के अर्ली एज की बात करें, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली टू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द टेम्पल, देयर वर नो द अदर रिलीजियस थिंग्स। वी कैन टेक द श्राइन्स, हम श्राइन को ले सकते हैं। मिडिल एरा में आए तो हमें मॉस्की और कैथेड्रल टाउन्स भी दिख जाएंगे, और मॉडर्न एरा में आए तो हमें वहां पे चर्च भी दिखेंगे। तो मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो धार्मिक प्लेस थे, जब ये डेवलप हुए, जब कोई जगह धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात हुई, तो उसी के साथ साथ उस नगर के, उस केंद्र के चारों तरफ होटल्स खुलने लगे, बड़ी दुकानें खुलने लगी, जिसे आज मॉल कहते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई लोगों को, फूडिंग एंड लॉजिंग सिस्टम के लिए वहां पे फूडिंग एंड लॉजिंग व्यवस्था कराई गई होगी, और फिर लोगों के अपने घर वहां पे बनते चले गए होंगे। डेंस पॉपुलेटेड एरिया के रूप में वो क्षेत्र विकसित होता चला गया होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे धार्मिक नगरों का विकास हुआ। सपोज यू आर इन वाराणसी, द काशी, दैट वाज द वेरी फेमस रिलीजियस सेंटर फॉर द वैदिक और सनातन रिलीजन्स। इट वाज द फेमस फॉर देयर एजुकेशन एज वेल एज देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस। काशी धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। अत्यंत प्राचीन काल से जितने भी फॉरेन विजिटर्स आए, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उन लोगों ने इसको देखा, इनकी महत्ता के बारे में उन्होंने वर्णन किया और बताया। प्रयाग सिमिलरली, हरिद्वार सिमिलरली, मदुरई, कांची, पुरी, आई थिंक देयर इज नो नीड टू टेक द नेम्स which is famous for their religious importance. They were developed on basis of that things. धार्मिक केंद्र के रूप में, श्राइन के रूप में कुछ चीजें विकसित होंगी, जैसे उत्तराखंड में कैंची धाम, जैसे आप देखिए तो शिरडी का धाम। तो इस तरह के जो सेंटर हैं वो धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए होंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में भी बात की। हमने आपसे कहा, I have already discussed with you the political center. Why? Because where the king lived, the administrative activities run particular around that center. उस व्यक्ति विशेष, उस राजा विशेष के चारों तरफ ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज राउंड कर रही होगी, वहीं पे वो काम होते होंगे, इसलिए वो नगर पॉलिटिकल सेंटर के रूप में विकसित हुए। हमने आपको इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में डेवलप की बात की थी, और हमने कहा था इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में इन चीज़ों को देखिए। इकोनॉमिकल सेंटर
कोई भी क्षेत्र इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में कैसे बसेगा? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से सरप्लस प्रोडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन जब होगा तो बिग पिजेंट्स उसको बेचने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे उसको अच्छी आय, आमदनी प्राप्त, प्रॉफिट्स मिले, उसकी इनकम बढ़े। तो ये छोटा सा मार्केटिंग प्लेस बनेगा, एक बाजार के रूप में केंद्र की स्थापना होगी और सरप्लस प्रोडक्शन से सीधा कनेक्ट होगा आर्टिसियंस। आर्टिसियंस सरप्लस प्रोडक्शन से कनेक्ट होगा और ये आर्टिसियंस सरप्लस और आर्टिसियंस, सरप्लस और आर्टिसियंस, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे क्योंकि खेती होगी तो खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। एक ऐसे वर्ग को जो घर बैठ के या फैक्ट्रियों में काम करे, जो नए नए वस्तुओं का निर्माण करे, जो उत्पादन को बढ़ाए, तो आर्टिसियंस को सरप्लस प्रोडक्शन से, अब आर्टिसियंस को सरप्लस प्रोडक्शन से उनको फूडिंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उन्होंने वस्तुओं का निर्माण तेज किया, गुड्स बने। आर्टिसियंस प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स और ये चीजें विदेशों में बेचने के लिए मार्केट में आई। इससे जब वस्तुएं बनी तो ये नीचे मार्केट में ये आए होंगी, मार्केटिंग प्लेस के रूप में डेवलप हुआ होगा जहाँ पे व्यापारी दूर से आते होंगे, वहाँ रहते होंगे, वहाँ उन्होंने अपने गोदाम बनाए, अपने अपने गोदाम्स के साथ साथ उन्होंने अपने घर बनाए होंगे, वहाँ पे खाने, रहने और तमाम सारी सुख सुविधाएं वहाँ अवेलेबल होगी और इस तरीके से ये मार्केटिंग सेंटर शहर के रूप में विकसित हुआ होगा। तो ये एक सिटी के डेवलपमेंट की कहानी है, नगरों के विकास का चरण है। इस तरीके से नगर बने होंगे और जैसा कि हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, हमने मेसोपोटामिया के बारे में कहा कि 3000 BC के आसपास मेसोपोटामिया में जो नगर बने उससे बाहर से वस्तुएं जो मंगाई जाती थी उसका बड़ा योगदान था। आई मीन टू से दैट द गुड्स which was not easily available in Mesopotamia that was imported from the other territories, other regions, other countries. Mesopotamia civilization also called the Bronze Age civilization, but how strange that bronze was not available in Mesopotamia, that was imported. Except the weapons which was used by the carpenters, artisans, masons, they were also made by bronze, and no doubt to explain again that these metals were imported by other countries. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस था, ये जो कनेक्शंस था, ये जो कम्युनिकेशंस था, इन चीजों ने भी नगरों के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाया होगा। अब हम बात करेंगे अर्बनिज्म इन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and interesting also. I hope you can easily understand the development and emergence of the city. कैसे शहर बनते हैं, कैसे शहरों का विकास होता है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं और किस तरीके से डेंस पॉपुलेशन उस एरिया में आके बस जाती है। I hope you can easily understand on the lecture of this class that how the new city emerges on the particular area where the political center, where the religious center, where the economical center, cultural center also. The city emerged. City, what? Gradually the area become the dense populated area where the every facility is easily available. Okay, so let us come to a topic. We are going to discuss that topic, the significance of urbanism. Cities and towns are not just places with a large population. It is when an economy develops in spheres other than food production that it became an advantage for people to cluster in town. Urban economics compress based food production, trade, manufacturers and services. Here four words: the production, the trade, manufacturers and the services. City people does case to be self-sufficient
and depend on the producer or services of others people. Others people, it means city or village peoples. There is the continuous interaction among them. For instance, the carving of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make, and colored stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving. Mind it, this stone came from which place they don't know. Their specialization, the artisan of Mesopotamia, their specialization to what? To carving. It's fine carving, not trading. You can get what I'm saying. कहता है, the bronze tools maker does not himself go out to get the metals, copper and tin. Besides, he needs regular supplies of the charcoals for fuel. The division of labor is a mark of urban life. Division of labor is a very important thing. मैंने आपसे कहा कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध तो कराते हैं, लेकिन ये केवल लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग, इंडस्ट्रीज भी डेवलप होते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, अन्य इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रन करने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो तेजी से बढ़ने लगती है, और इसका रिजल्ट होता है टाउन का निर्माण, कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन, तरह तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के लोगों के द्वारा वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए गांव के लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए एक पत्थर का काम करने वाले आर्टिसंस के लिए ये पत्थर कहां से आएगा? ये पत्थर उसको दूर दराज क्षेत्रों से मंगाना पड़ेगा, और जब ये बाहर से मंगाएंगे तो पत्थर पे उकेरने के लिए उनके वीपन्स चाहिए, उसके लिए भी वो बाहर से वो चीजें लाएंगे। वे स्वयं ऐसे टूल्स नहीं बनाते, लेकिन हाँ, वो उस टूल्स की सहायता से उस पत्थर को अच्छे से उकेरने की कला में they were fine carving men. Even they have no goods. Even they don't know कि where their raw materials came, वहाँ उनका जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उनको इसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो इन चीजों से इन वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं। कहता है कि जो ये मेटल्स हैं, कॉपर है, ब्रोंज है, टिन है, ये खुद बाहर लेने नहीं जाता, इसके लिए उसको ट्रेडर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। इस प्रकार डिवीजन ऑफ लेबर शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। सारी जो विनिर्माता है, जो शहरी निर्माण करता है, उनके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से मंगानी पड़ती है, और इसके लिए ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, इनके संग्रह तथा इनके वितरण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, उनके साथ जो एडजस्टमेंट करने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मुद्रा को काटने वाले केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार, बर्तन भी चाहिए।
जाहिर है कि ऐसी प्रणाली के लिए कुछ लोग आदेश देते थे, कुछ लोग उनका पालन करते थे, और इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था अपने हिसाब किताब से उनको रिटन फॉर्म में लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह की चीज़ें एक लेखक वर्ग भी रहता होगा। I hope you are getting what I am telling. I am telling that the further there must be social organization in place. Fuel, metal, various stone, wood, etc. come from many different places for various city manufacturers. Thus, organized trade and storage is needed. There are the deliverers of grain and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. Besides, many different activities have to coordinate. There must be not only stone but also bronze tools and pots available for seal cutters. Obviously, in such a system, some people give commands that others obey, and urban economics often require the keeping of writing records. It means in the city there are the various groups. Someone involved himself in trading, someone involved himself in artisan work, someone involved himself in fooding supply, someone involved himself for services. It means division of labor, that is the basic importance of the city. तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय एंड टेक केयर।